اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خواہشات ہی آپ کے دل میں جب ڈالتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اس چیز کو لکھنا ہوتا ہے تو بس آپ دعا کیجئے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن فرما دینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو معجزات کرتے ہیں۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ اپنا گمان اچھا رکھیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین گمان رکھنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں اسی کو بہتر بنا دیں گے جو آپ دعاؤں میں مانگ رہے ہیں۔ تو بس آپ دعاؤں کو جاری رکھیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ تک آپ کی من پسند چیز کو کیسے پہنچانا ہے اور کب بہتر وقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حال میں اس چیز کو آپ تک پہنچا کر ہی رہیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کن کہتے ہیں نا تو ساری دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ فیکن کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ تو بس پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو وہ وقت بھی آنا ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے صبر کا صلہ آپ کو عطا کرنا ہے، آپ کی من پسند چیز کی صورت میں آپ کو دینا ہے۔ تو بس پھر آپ پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیے اور دعائیں مانگتے رہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ضرور رکھ لیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے تسلسل کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا اتنے لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ یقین کیجیے آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ بار بار مانگے۔ جب کبھی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں جنہوں نے مجھے تکلیفیں دی تھی، یہ لائن مجھے بہت زیادہ سکون دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے پہ آئے تو پتھر بھی بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت آپ سے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ شاید آپ خود سے بھی اتنی محبت نہ کر سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظار کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا آزماتے ہیں نا، تو شیطان دعا قبول نہ ہونے کے وسوسے آپ کے دل میں ڈالنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو کس طریقے سے جو ہے وہ بھٹکانا ہے۔ تو اپنے آپ کو کبھی بھٹکنے مت دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے گا اور 5 وقت کی نماز پڑھیے گا، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے گا۔ یہ جو دل کی بے چینی ہے نا، یہ صرف اور صرف اسی لیے تو ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی، میں دعا کرنی چھوڑ دوں گی یا چھوڑ دوں گا۔ تو بس یہ جو وسوسے آ رہے ہیں نا، یہ صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں، ان کی دعائیں تو ضرور قبول ہوتی ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، کی زندگیوں میں تو معجزات ہی معجزات ہوتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے اور کھل کر مانگیے۔ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لیجئے۔ یقین کریے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے بڑے سچے ہیں۔ پتہ ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانا کتنا آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، بس وہ 2 جہانوں کے بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو سوچو تو صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا جو ہے وہ عرش کے دروازے کھلوا دیتی ہے۔ تو بس پھر آپ کا کام ہے، آپ نے دعا مانگنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے، توکل رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں اور ضرور ہوں گے آپ کے لیے، اور پھر ایک دن آپ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئے گی جب آپ کی کہانی مکمل ہو جائے گی، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج بہت ہی پیاری سی جو 2 میریکل سٹوریز ہیں، پہلی میریکل سٹوری جو ہے
वो है मिरेकल ऑफ तहज्जुद, और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ आयत करीमा। बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला मौजिज़ात कर देने पर कादिर है मेरी प्यारियों। आप भी तवक्कल और यकीन रखिए और अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगते रहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब आप लोग भी अपनी मिरेकल स्टोरीज मुझे ज़रूर सेंड करेंगे और मैं शेयर करूंगी, और आप लोगों की खुशी को जो है मैं खुद महसूस करूंगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतेकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है मिरेकल ऑफ तहज्जुद, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। आप ही कैसी हैं? आप और आपकी प्यारियां कैसी हैं? आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार और सलाम देना चाहूँगी। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत सारी खुशियां अता फरमाएं, और अल्लाह पाक ने जैसे मेरी ज़िंदगी में खूबसूरत मौजिज़ा किया है, सबकी ज़िंदगियों में खूबसूरत मौजिज़ात करें जो लोग आपको सुनते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो ऐसा है कि मैं आज आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहूँगी, जो अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में जिसको वसीला बनाया और उसने मुझे हिम्मत दी, और उसने मुझे हमेशा यही कहा कि तुमने दुआ करनी कभी नहीं छोड़नी है। मिरेकल हुआ है और मैं आपको अपनी कहानी भेज रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बहन की शादी हुई थी जो कि आउट ऑफ फैमिली में हुई थी। तो आप ही जब उसकी शादी पर उसके ससुराल की तरफ से कुछ रिलेटिव्स आए थे, तो उन्हीं में से भी एक फैमिली थी जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिसेंट थी। अब आप ही मुझे मालूम नहीं था कि उनके जो बेटे हैं वो मेरा नंबर जो है मेरी कज़न से है, उन्होंने मेरे नंबर को लिया। जैसे ही शादी ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैंने आप ही आज तक किसी भी अननोन पर्सन से कभी बात नहीं की थी, क्योंकि हमारे घर का माहौल भी ऐसा नहीं था। इसी वजह से बस आप ही कह लें कि अल्लाह का शुक्र है, हमेशा बुराई से अल्लाह पाक ने दूर ही रखा है। अब आप ही ऐसा होता है कि एक अननोन नंबर से कॉल आती है। मैंने अपने भाई को जाकर फ़ोन पकड़ा दिया, और मेरे भाई ने जब वो कॉल को पिक किया तो भाई ने कहा मुझे लगा है किसी मेल की आवाज़ है। खैर आप ही भाई ने वो नंबर अपने फ़ोन में नोट किया, और उसके बाद भाई ने उनको अपने नंबर से कॉल कर कर कहा कि आप जो हैं हमारे घर के पर्सनल नंबर पर क्यों कॉल कर रहे हैं, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि जी सॉरी, गलती से नंबर मिल गया था, मैं आइंदा जो है इस नंबर पर कॉल नहीं करूँगा। खैर आप ही मुझे तो पता भी नहीं था वही फैमिली है जो कि पूरी शादी में से अलग लग रहे थे, और इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इस्लामिक, और आप ही इनकी बहनें और इनकी अम्मी भी बहुत अच्छी थी। खैर उसके बाद आप ही ऐसा होता है कि 5 दिन गुजरने के बाद दोबारा से मुझे जो है कॉल आती है, और आप ही वो भी अननोन नंबर था। नंबर लेकर भी मैं दोबारा से भाई के पास गई हूँ। भाई ने कॉल पिक की तो आगे से आप ही एक लड़की की आवाज़ थी, और उन्होंने मेरा नाम लिया। अब आप ही वो लड़की जो थी वो इनकी बहन थी। अब आप ही उन्होंने मुझसे बात की। मैंने कहा आप कौन है, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी बहन की शादी पर मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा। मैं हैरान रह गई कि ये तो उन्हीं की बेटी हैं। अब मैंने कहा जी जी बिल्कुल, मैं आपको पहचान गई हूँ, कैसी हैं आप, ठीक हैं? और आप ही वो लोग दूसरे शहर से आए हुए थे शादी पर। तो मैंने उनसे पूछा कि वापस चले गए हैं आप लोग, और आंटी कैसी हैं, आपकी बाकी बहनें वगैरह सब कैसे हैं? उन्होंने कहा सब ठीक ठाक हैं। आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया है? मैं तो हैरान रह गई कि आपने मुझे कॉल की, आपकी ही कज़न से जो है मैंने नंबर लिया है आपका, तो बस दिल कर रहा था आपसे बात करने के लिए, थोड़ा सा वक्त होगा? तो मैंने कहा जी बिल्कुल हम बात कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब आप ही उन्होंने अपनी बहन को इसलिए एंटर किया क्योंकि उनको ये बात पता चल चुकी थी कि मैं डायरेक्टली तो उनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। अब आप ही होता कुछ यूं है, उनकी बहन और मेरी सबसे पहले दोस्ती हो गई, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि सारा मसला चल क्या रहा है। खैर उसके बाद आप ही ऐसा होता है कि उनकी बहन ने एक दिन मुझे बोला एंगेजमेंट वगैरह कहीं हुई है? मैंने कहा नहीं, मेरी कहीं पर एंगेजमेंट नहीं हुई है, हाँ घर वाले रिश्ते वगैरह देख रहे हैं। बस उसके बाद आप ही इसी तरीके से उन्होंने कहा कि क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर आपके घर आऊं? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, ये बात कैसे आप कह रही हैं? उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, घर में रिश्ते आते हैं, और जैसे कि आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम लोग आपका रिश्ता लेकर आ जाएं। मुझे तो आप बहुत अच्छी लगी हैं, और इसीलिए मैंने आपसे दोस्ती भी की थी। अब मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगी। मैंने कहा कि देखिए 2 हफ्ते के अंदर किसी से दोस्ती हो जाना, तो क्या ये सोच लेना चाहिए कि हम उसे अपने घर में ले आए बहू बनाकर, या किसी से अपने भाई की शादी करवा
करवा दें। अब उन्होंने मुझे अंदर की सारी बात बताई कि देखें आप बुरा तो नहीं मानेंगी, मैं आपको एक बात कहूँ। मैंने कहा नहीं आप बोलें, मुझसे सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलना है। मैंने कहा नहीं क्यों मैं आपसे बुरा मानूंगी। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि आपकी फैमिली और आपकी बहन बहुत अच्छी है। आपकी बहन हमारी फैमिली में आई है तो बाकायदा हर फैमिली का बंदा कहता है ये बहुत ही ज़्यादा ख़ानदानी लोगों में से जो है अपनी बहू लेकर आए हैं। लेकिन बात असल ये है कि मेरे भाई को जो है आप अपनी बहन की शादी पे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो इसी वजह से उन्होंने आपको उस वक्त में कॉल की थी, अगर आपको याद आ रहा होगा। अब मैंने कहा जी जी बिल्कुल मुझे याद आ गया है, उस वक्त में आपके भाई की कॉल आई थी लेकिन मैंने अपने भाई को फ़ोन पकड़ा दिया था। अब वो हंसने लग गई। उन्होंने कहा इसीलिए तो वो बेचारा इतना डर गया कि उसने सारा मामला मेरे से जो है वो करवाया, और उन्होंने मुझे एंटर इसीलिए किया ताकि मैं आपसे बात कर सकूं इस बारे में। मैंने कहा कि देखें हमारे घर का माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं है और मैं बिल्कुल भी जो है ऐसी कोई भी बात अपने घर वालों से नहीं कर सकती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, आपसे बात कर कर हमेशा मुझे अच्छा लगा। 2 हफ्ते की दोस्ती ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कितने सालों से आप जो है मुझे जानती हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगी आपने नाराज़ नहीं होना है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपने घर वालों से डायरेक्टली इस बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। अब आप ही उन्होंने मेरा 15 मिनट का लेक्चर सुनने के बाद जो है खामोशी के बाद मुझे जवाब देती हैं कि आपको कहा किसने कि आप बात करें, मुझे तो सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए, उसके बाद मैं जानूँ, मेरी अम्मी जाने, हमारे घर वाले जाने, आपने बिला वजह इतना कुछ सोच लिया। अब आप ही मैं हंसने भी लग गई, मेरा ही मजाक बन गया है। मैं खामोश हो गई। उन्होंने कहा इस खामोशी का मतलब क्या हाँ समझूं। अब आप ही मेरे दिल में तो उस टाइम ये ख्याल आया था ना कि ये फैमिली कितनी अच्छी है, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि ये फैमिली जो मैं सोच रही हूँ यही कहीं मेरा ससुराल बनने वाला है। लेकिन आप ही कहते हैं ना कि जहाँ पर हम सोच रहे होते हैं कभी कभार वैसा नहीं भी होता है, लेकिन कभी कभार वैसा भी हो जाता है जो कि हमने सोचा भी नहीं होता है। अब आप ही होता कुछ यूँ है कि उनकी फैमिली ने जो है डायरेक्टली मेरी बहन से रिश्ते के सिलसिले में बात की। उसके बाद आप ही मेरी बहन जो है वो वीकेंड पे आई हमारे घर। उसने अम्मी अब्बू से इस सिलसिले में बात की कि अम्मी अब्बू आप अभी इसके रिश्ते देख रहे हैं तो मेरी फैमिली में ही इस तरह का एक रिश्ता है तो आप लोग देख लीजिए। बहन ने जो है उनको हमारे घर इनवाइट किया। आप ही उसके बाद जो है वो लोग अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए। सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन आप ही एक गलती ये थी कि मेरे जो पहले बहनोई थे वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे, फिर उनकी ड्रेसिंग सेंस सारे मामलात बहुत अच्छे थे। लेकिन आप ही ये जब मेरा रिश्ता देखने के लिए आए, पता नहीं आप ही वो वक्त शायद ऐसा था, लेकिन उस वक्त में ये सब कुछ होना नहीं था और इनको अल्लाह पाक ने बदलना था, सिचुएशन से हमें गुजारना था। अब आप ही इस चीज़ से किसी को भी कोई एतराज़ नहीं था। मेरे बहनोई ने कहा कि ये तो मेरे कज़न हैं, इनकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आप ही मसला ये हुआ सवा खैर वो लोग अपने घर चले गए और उसके बाद मेरे अब्बू ने ये कुछ बातें कही जो मैं आपको बताने लगी हूँ। मेरे अब्बू ने कहा कि इस लड़के को किसी चीज़ की भी सेंस नहीं थी और किस तरीके से जो है बैठा हुआ टांग हिला रहा था और ये क्या तरीका हुआ। अब आप ही बस ये कुछ बातें थी जिस वजह से मेरे अब्बू को कहीं ना कहीं पर वो लड़का जो था वो समझ नहीं आया, वहां से जो है सारा इनकार हो गया। अब आप ही 4 दिन बाद उनकी अम्मी ने मेरी बहन को कॉल की, लेकिन मेरी बहन ने कहा अब्बू ने सोचा है कि अभी रिश्ता नहीं करना है, लेकिन आंटी अल्लाह पाक बेहतरीन नसीब करने वाले हैं, आपने किसी चीज़ का बुरा नहीं मानना है और ना ही इस चीज़ को आपने सीरियस लेना है। खैर उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और वो इस चीज़ को समझ गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करें आपकी बहन के लिए भी मेरे बेटे के लिए भी। अब आप ही उसके बाद जो सारी बात ख़त्म हो गई। अब आप ही उस दौरान जो है उनकी बहन ने मुझे कॉल की। उन्होंने कहा कि देखिए मुझे सच सच बताइएगा मेरे भाई में कहाँ पर कमी थी, कोई रिश्ता मुनासिब नहीं लगा। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से तो ना पहले ऐसी कोई बात थी ना अब कोई ऐसी बात है। हाँ ये है कि मेरे अब्बू को कुछ बातें हैं जो कि पसंद नहीं आई हैं। खैर आप ही वो सारी बातें मैंने उनकी बहन को क्लियरिटी के साथ बता दी। उन्होंने कहा कि चले कोई बात नहीं, आपने मुझसे सच बोला मुझे अच्छा लगा, लेकिन अल्लाह पाक तो हिदायत देने वाले हैं ना, और मेरा भाई तो सादा है, वो जैसा घर में होता है वैसा ही जो है एज इट इज़ आपके घर आ गया और उसने कभी किसी चीज़ में बनावट शो नहीं की। कि अल्लाह पाक आपका नसीब भी अच्छा करे और उसका नसीब भी अच्छा करे। कभी कभार ऐसा होता था कि कभी मैं कोई अपना स्टेटस वगैरह अपडेट करती थी तो उनकी बहन से उसके थ्रू कभी कभार बात
मुलाकात हो जाती थी। ऐसा हुआ कि जब उस रिश्ते से इनकार हो गया, पता नहीं क्यों मेरे दिल में जो है बार बार उनका ख्याल आए, मेरे सामने उनका चेहरा आए, जिस तरीके से वो आकर बैठे हुए थे दी में जो मैंने उनको देखा था, खुद ब खुद आप ये सारी चीज़ें जो है मेरे दिल में होने लग गई। मैं ऐसे हो गई जैसे पता नहीं इस इंसान को मैं कितने अरसे से जानती हूँ। अब आप ही ना चाहते हुए भी मैंने अल्लाह पाक से कहा कि अल्लाह पाक, मुझे नहीं पता ये बेचैनी किस वजह से है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ तो मैंने कभी भी नहीं देखा है मेरे साथ होगा। अब अल्लाह पाक की सिचुएशन के बारे में तो मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने अपनी बहन को बताया तो वो भी मुझे हो सकता है डांट दे, लेकिन अल्लाह पाक आप तो मुझे सुनते हैं और आप ही मेरी मदद फरमाएंगे। बाकी अल्लाह पाक जो मेरे लिए बेहतरीन है वो खुद ब खुद आप कर दीजिएगा। अब आप ही उसके बाद ऐसा हुआ, बस इसी सिचुएशन में जो है वक्त का पता भी नहीं चला कि वक्त को ऐसे पड़ लगे कि देखते ही देखते जो है 2.5 साल गुजर गए। उसी दौरान मेरे काफी प्रपोजल्स वगैरह भी आए, लेकिन आप ही बात नहीं बन पाई। तो अब आप ही ऐसा हुआ कि मैं यूट्यूब पर, मेरी रूटीन थी कि मैं फ्राइडे वाले दिन जो है इस्लामिक वीडियोस काफी वॉच किया करती थी, रूटीन बनी हुई थी। तो उसी तरीके से मैंने आप ही फ्राइडे वाले दिन जो है कुछ वीडियोस को वॉच करना शुरू किया। उसी दौरान जो है आप ही आपकी जो तकरीबन आपकी सबसे पहली जो मिरेकल स्टोरी थी जो कि आपने अपनी शेयर की थी, मिरेकल ऑफ तहज्जुद, तो बस फिर आप ही वो मेरे लिए मिरेकल बनकर मेरी जिंदगी में आती है। और मैंने आपको जो है उसके बाद आपकी आप ही पहले वाली आईडी पर मैसेज किया जो कि आपके इंस्टा पर है, तो उसमें आप ही आपने मुझे रिप्लाई दिया और उसके बाद हमारी भी बातचीत हुई। मैंने सारी सिचुएशन के बारे में आपको बताया, आपने कहा कि अल्लाह पाक खैर करेंगे, अल्लाह पाक से दुआ कीजिए अपने लिए भी उनके लिए भी। से ये सवाल था कि मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं था, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है। आपने कहा कि अल्लाह पाक बेहतरीन करने वाले हैं, अल्लाह पाक तो जानते हैं अल्लाह पाक ने जो करना है, तो बस फिर आप मांगिए ना, आपको मांगने में क्या है। आपने मुझे जब ऐसे कहा ना तो यकीन करें मुझे लगा कि अल्लाह पाक तो वाकई में ही सुनते हैं और अल्लाह पाक ने ही मौजिज़ात करने हैं। बस फिर आप ही ऐसा था, लम्हा था और वही दिन था। और फिर उसी दिन की जो रात थी उस वक्त आप ही मैंने पहली बार जो है तहज्जुद नमाज को अदा किया, और मेरे दिल में जो कैफियत थी वो मैं आपको किस तरीके से बयान करूं, शायद मेरे अल्फाज कम पड़ जाएं। अल्लाह पाक से अल्लाह पाक की वाकई में ही मोहब्बत को मांग रही थी, जैसे कि आप कहती हैं ना, तो अल्लाह पाक ने आप ही बस मुझे इतना सुकून अता कर दिया। और मैं कह रही थी कि अल्लाह पाक, मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे दिल में क्यों बेचैनी है, लेकिन आप ही मौजिज़ा यहाँ पर होता है कि उस इंसान को अल्लाह पाक ने ऐसा बदला कि वो वहाँ पर मुझे तहज्जुद की नमाजों में मांग रहे थे। अब आप ही उसी दौरान ऐसा होता है कि मेरे अम्मी अब्बू जो है वो उम्रे पर जा रहे थे, तो तुम्हारी शादी कब हो कब ना हो, इतने रिश्ते वगैरह भी आते हैं, पता नहीं कहीं पर बात भी नहीं बन पा रही है, तो ऐसा करो तुम और छोटा वाला जो भाई है हमारे साथ उम्रे पर चलो। बस फिर आप ही, मुझे तो पता भी नहीं चला कि अल्लाह पाक ने तहज्जुद की नमाज पढ़ने से मुझे अपने घर में बुला लिया, और ऐसे अल्लाह पाक ने आप ही वहाँ पर मेरे लिए मौजिज़ा सोचा हुआ था। सुनने में शायद लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यारा सा मौजिज़ा जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वैसा अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में किया है। बस फिर आप ही ऐसा हुआ कि झटपट में अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर में बुला लिया और मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला उम्रा अदा किया। अल्लाह पाक का शुक्र और करम है, मैंने आपको वहाँ से काफ़ी सारी वीडियोस और पिक्चर्स भी भेजी थी, मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मैं जो तहज्जुद की नमाज वहाँ पर पढ़ती थी, जो इबादत करती थी, अल्लाह पाक से अल्लाह पाक की रज़ा को ही मांग रही थी। और अब आप ही देखिए ना, वहाँ पर रात को तहज्जुद के वक्त में मैं नमाज पढ़ रही थी और आप ही मेरी अचानक से जो है दूर से नज़र पड़ती है कि उनकी अम्मी जैसी एक औरत बैठी हुई है। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी वो देखिए, क्या ये वही आंटी हैं कि बहन के रिलेटिव्स में से हैं। अम्मी ने कहा कि हाँ ये तो बिल्कुल वही हैं। अब आप ही उनके पास हम जैसे ही गए, वो हमें देख के वहाँ हैरान हो गई और हम उन्हें देख के वहाँ हैरान हो गए। बस फिर आप ही ऐसा हुआ कि वहाँ पर हमारी मुलाकात होती है और वो आप ही अपने दोनों बेटों के साथ वहाँ आई हुई थी। बस फिर आप ही उसके बाद जब उस इंसान को मैंने, मेरे अब्बू ने, मेरी अम्मी ने देखा, उन लोगों ने कहा कि ये लड़का तो बिल्कुल बदल कर रह गया है। अब आप ही वहीं पर बैठे बैठे उनकी अम्मी ने सारी बात बताई कि अल्लाह पाक हिदायत देने वाले हैं। लड़का कभी नमाज तक नहीं पढ़ता था, लेकिन अल्लाह ने इसको ऐसा बदला है, आज मेरे दोनों बेटे मुझे उम्रे पर लेकर आए हैं और आप लोगों से यहाँ पर मुलाकात होनी थी, ये भी तो एक मौजिज़ा है। ये आंटी के अल्फाज थे जो कि उनकी ज़बान से निकले हैं। तहज्जुद के वक्त में जो आसमान की रोशनी थी उसको देख रही थी और मेरी आंख से आंसू गिर रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मौजिज़ा मेरे लिए वहाँ पर हो जाना है। फिर आप ही उसके बाद वो सफ़र इख्तिताम होता है, खूबसूरत तरीन मेरी ज़िंदगी का सफ़र, और उस सफ़र ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। जब हम उम्रा कर
کر واپس آئے ہیں، میرے ابو نے خود ڈائریکٹلی میری امی سے کہا کہ ان کی فیملی کو گھر میں بلاؤ، وہ لڑکا جو ہے میرے دل کو لگ گیا ہے، اللہ پاک نے اس کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور الحمدللہ بس پھر آپ ہی تہجد نماز پڑھنے سے اللہ پاک نے یہ خوبصورت ترین معجزہ میری زندگی میں کیا، اور الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری اب شادی ان سے ہو چکی ہے اور وہ میرے محرم بن چکے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ ایک وسیلہ میرے لیے بنا جس نے مجھے دعا کرنے کی ہمت دی، تو وہ وسیلہ اللہ پاک نے آپ کی ویڈیوز کو اور آپ کو بنایا۔ اللہ پاک ان بہنوں کو اجر عطا فرمائے جو آپ کے ساتھ میریکل سٹوریز کو شیئر کرتی ہیں، آپ ہم تک پہنچاتی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ حقیقت میں ہر نماز میں اور تہجد کے وقت میں میری دل سے دعا ہوتی ہے آپ کے لیے اور آپ کے چینل کے لیے کہ اللہ پاک نے کیسے جھٹ پٹ میں سب کچھ جو ہے بدل کر رکھ دیا۔ بیچ میں عرصہ تھا گزارنا مشکل تھا، لیکن اللہ پاک نے اس وقت میں میرے لیے کیا سوچا ہوا تھا مجھے معلوم نہیں تھا۔ بے شک آپ ہی معجزات ہوتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ بس انہوں نے اللہ پاک سے جو ہے اپنے دل کو لگا لیا تھا، اللہ پاک سے دعائیں کرتے تھے، تہجد نماز پڑھتے تھے، با جماعت نماز ادا کرتے تھے، باقاعدہ مسجد میں جا کر اذان بھی دینی شروع کر دی تھی۔ بے شک آپ ہی اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں اور اللہ پاک کی گمراہی سے نکال کر اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ ایسے ہی رکھیں اور اللہ پاک ہمیں نیک اور فرما بردار اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اور بے شک میری پیاری بہن وسیلے بنتے ہیں، اللہ پاک رستے بناتے ہیں، اور میری دل سے دعا ہے کہ جیسے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو سن رہے ہیں اور جس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو بھی قبول کریں۔ شاید جس کی ایک آنکھ میں اس وقت میں آنسو آیا ہوگا، اور اللہ پاک ان کے لیے بھی ایسے معجزات کریں، اللہ پاک خوبصورت معجزات کریں سب کی زندگی میں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اور میری بہن اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ اور مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے، میں بھی سیکھ رہی ہوں، یہی کہتی ہوں کہ دعا کیا کرو، کیونکہ میری پیاریوں دعا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، میں بس یہ کہوں گی۔ اور میری زندگی کہہ لو کہ ایک دعا نہیں بدلی ہے، اور بس دعا سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ دعا کرنی مت چھوڑا کریں، اللہ پاک سے مانگا کریں، اللہ پاک نے سب کچھ عطا کرنا ہے، اللہ پاک کرم فرمائے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف آیت کریمہ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ میں آپ کو اپنی بہن کی میریکل سٹوری بھیجنا چاہتی ہوں، جس کو تقریباً 6 سال پہلے جو ہے ڈیورس ہو گئی تھی، وغیرہ نہیں آ رہے تھے، بس اسی وجہ سے جو ہے کافی وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی ایج بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ پاک کا یہ شکر ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے ایجوکیٹڈ ہے، وہ اپنی جاب بھی کر رہی تھی۔ میری امی جو ہے کافی کچھ اس کے رشتے کے سلسلے میں پڑھ رہی تھی، جس میں سے آیت کریمہ بھی تھا، جتنا ہو سکتا تھا میری امی اس کے لیے پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک اس کے نصیب کو جگا دے۔ لوگوں کی عجیب عجیب باتوں کا میری بہن نے سامنا کیا ہے، لیکن آپ ہی اللہ پاک کی مدد آتی ہے، اور مدد ایسے آئی ہے کہ میری بہن جہاں پر جاب کر رہی تھی، میری بہن کی دوست تھی، تو انہوں نے جو ہے آگے سے جو ہے پروپوزل کسی کا بتایا۔ ان کی وائف کی پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آج میری بہن جو ہے اپنے گھر میں خوش ہے، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ تو بس یہ چھوٹی سی کہانی جو ہے بہن کی زندگی کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو کہ اللہ پاک نے اس کی زندگی میں یہ معجزہ کیا ہے 6 سال بعد۔ الحمدللہ امی کی کوئی تعداد نہیں تھی آیت کریمہ پڑھنے کے بارے میں، لیکن امی جو ہے 1000 سے اوپر روزانہ پڑھا کرتی تھی، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، بہن کے نصیب کو دوبارہ سے جگا دیا الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پیاری بہنوں کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے بیٹے حسنین کی خوشیاں آپ کے نصیب کریں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ پیاری بہن کہ آپ نے اتنی پیاری سی چھوٹی سی میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے، کہ امی نے جو ہے مسلسل جو ہے جس طریقے سے یہ بتا رہی ہے کہ 1000 سے زیادہ تعداد میں آیت کریمہ پڑھتی تھی اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ، تو الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی بہن کے نصیب کو دوبارہ سے جگایا۔ بس ہمت نہ ہارا کریں، اللہ پاک سے مانگا
کریں، اللہ پاک سب کی زندگیوں میں خوبصورت معجزات کریں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریو آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بہت بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، سب کے دلوں کی حاجات، سب کے دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، میری ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمتیں برکتیں فضیلتیں نازل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔